कर दो उसको. इसको करना, इसको बोलना चाहिए नहीं. All right. Hey, hi guys. Welcome back to Coding Ninjas, and let's wait for a couple of minutes, and then we'll start with the session. All right. Hi Rishi. Okay. So, to the people who are in chat, please post a hi, and then we can just talk about it. So the only thing that I'm going to tell, this is not some kind of some kind of a Q&A session where you're going to ask me questions or I'm going to give you an answer. And neither when we talk about how to overcome distractions, the topic, it is never a problem with me. All right, just think this is one thing that you want a solution for. So when you talk about this kind of session, all right, this is never a Q&A session. This is never you some kind of a activity going on here. We are here, we are going to collectively find answer for us, and how can we actually overcome our distractions. So when we talk about this, the word distraction, I'll tell you, it's not about with the 2023 people who are just in college, people who are actually working somewhere, or when you talk about people in school. I'm sure the biggest chunk of you people are in college right now, and you're facing this thing called as distraction. Every each and one of us have been through it. All right, so distraction is very common. All right, and when we talk about millennials, the people who are actually born after 1984, when leaders ask them like to millennials, like what is the actual purpose of your life, so they do say that they want to do something good, they want to reflect back, they want to give back to the environment. All right, that's actually that's beautiful, that is very good when I talk about it. All right, but the point here is, most of the people, I'm sorry to say, they have four major problems that these guys face. And when I am talking about these guys, you guys, whosoever have distraction, you might come in one of the tabs. All right, so four reasons why, there's some kind of problem happening in your life is because either there is some kind of a parenting problem that you don't get some good environment, or the second problem can be the technology that you have in your surroundings. All right, fourth is the impatience that depends upon your own nature, and fourth, which is your environment. All right, so these four are the main issues when it comes to it. So how distractions come into life is, first of all, the parenting problem. And how does it comes is, I'm going to give you an example. Hey, he's my son, and I'm going to give him everything. All right, whenever this kind of statement comes from parenting, this is some kind of bad parenting. Why? I'll tell you. If you're going to give everything to your child is never going to give his full to any of the tasks, because he knows that I have my parents and my parents are going to give me back. All right, even even we hear it every day in our home that what my child wants, I'm going to give him. All right, other than that, I mean, let's leave the facts. जो भी मेरा बच्चा चाहता है हम उसको देंगे, because we are actually capable to do it. This thing actually creates a barrier in his life which he cannot penetrate, because he is actually super satisfied in his own life. He wants to be good, you want to be good, but you don't penetrate it. All right, because you have everything, so you have some kind of economic leisure that your parent has given to you. So this is the first problem, the parenting problem. Second problem is coming to the technology part. So as you can see nowadays, the devices, the technology in 2022, 2023, it has been super vast that you're going to see outside. Instagram, Facebook, all actually giving you a lot of exposure of things, and which makes you feel like, hey, how much good people are living their life, right? How good they are actually living their life. But it actually makes you stressed out, right? In some or the other way. Like, why is he living?
so good life. And actually that causes a kind of dopamine rush. So this technology gives you that dopamine rush that uh, normal smoking does, that normal drinking does. All right, any kind of these things may give you these kind of dopamine. So this technology actually pushes the same. So whenever a text comes up to you, you're always likely to go to your phone and check, hey, किसका मैसेज आया. Alright, so this is one kind of distraction. तो तुमने लोगों ने देखा होगा कि जब भी तुम लोग पढ़ने बैठते हो, हल्का सा नोटिफिकेशन साउंड आ जाता है, हल्का सा भी नोटिफिकेशन साउंड आता है, you actually switch to the phone. And why does it happen? Because जब भी कोई टेक्स्ट आता है, the same chemical जो स्मोक करने से निकलता है या फिर whenever you drink, alright, ड्रिंक करने के बाद जो केमिकल निकलता है, एकदम सेम केमिकल वही निकलता है when a text comes. And that is the starting of your distraction. ठीक है. Third is you're being impatient. तो impatient से भी काफी ज्यादा, for example, let's say क्या होता है कि जब भी तुम लोग अपना फोन चलाते हो पढ़ाई के बीच में, यू आर वेरी इम्पेशेंट, तुम रश करते जाते हो. लेट्स से कि अभी एक वीडियो आया था, एक व्लॉग तुमने चलाया, अब तुम इम्पेशेंट हो गए, मल्टीपल व्लॉग्स आ रहे हो, तुम देखे जा रहे हो, बीइंग वेरी इम्पेशेंट. तो ये जो कीज है, हम लोग इसको जिस दिन रोक देंगे, हम ये समझ जाएंगे, when we'll understand our mind, you're going to overcome your distraction. Now how can you do it? So I can see a lot of people. Hi guys, Rishi, Akshat, Siddhant, Vaishnavi, Shashank, Akshat, Shashank. All right, hi guys. आसिफ, कोई नहीं, आसिफ मैं इसका आंसर करूंगा. You're totally depressed, but कोई बात नहीं, don't worry. I'm going to give you a lot motivation. Pallabnath says, I want to get a good job. All right. And I'm absolutely super happy you guys seeing कि तुम लोग के पास एक अच्छा गोल है. तो सबसे पहले whenever you get distracted, all right, whenever you get distracted, the first question that you should ask yourself is, what is important to you? All right. So you are, for example, let's say within the studies, जब भी तुम लोग study कर रहे हो, for example, let's say मैं जब programming करता था और जब मैं phone चलाता था, ठीक है, what I used to do is, what I used to think is, what is currently important for me. देखो मैं तुम लोग को है ना एक सिंपल सॉर्टेड आंसर दे दूंगा एंड के अंदर, वो तुम लोग को बहुत ज्यादा हिट कर जाएगा, ठीक है, एंड वो हिट कर जाएगा. आई मीन आई नो दैट इज गोइंग टू हिट, बट आई एम नॉट गिविंग यू this till now because there is something important that I want to tell you. See, सबसे पहली जो चीज तुम लोग के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर ओवरकमिंग डिस्ट्रैक्शन इज यू शुड हैव अ गोल. अगर तुम्हारे पास गोल है, you're going to do it. At least you will be inside the game at least 60-70%. अगर तुम सिर्फ अपना गोल जानते हो तो एटलीस्ट तुम 60-70% गेम के अंदर हो. एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज नोइंग द गोल मेक्स यू वर्क ऑन. अब जब तुम्हें पता है तुम्हारा गोल क्या है, एंड नाउ लेट्स से तुम स्टडी कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, फॉर एग्जांपल देखो जिसको भी सक्सेसफुल होना है, फॉर एग्जांपल लेट्स से आसिफ, पल्लव, अक्षर, शशांक, वैष्णवी, whosoever is in life, if you want to be successful, the one and the most important thing is, the only important thing is how much you're into it and how much you're willing to be successful. तो अगर तुम willing, तुम्हारे अंदर willingness है, तो देखो distraction होगा, ठीक है, but how you're going to stop your distraction is by when you know what your goal is and how much important your goal is to you. ठीक है, तो इसको फिगर आउट करने के लिए ना तुम लोग हमेशा ये चीज देखा करो कि जो तुम्हारा गोल है उससे तुम्हें लाइफ में क्या मिलेगा. तो फॉर एग्जाम्पल आई विल से व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ, एंड आई एम एब्सोल्युटली ब्लंट एट सेइंग, आई एम बीइंग वेरी blunt at saying yes, motivation for me is money. All right, तो ये मेरा एक काइंड ऑफ मोटिवेशन है which actually drives me. All right, so money gives me that power to drive, and I'm sure most of you guys have this driving force. So I think it's well and good when you know what your goal is going to give. So my goal is going to give me a lot of money in my future. That's why I'm actually studying. तो simple है, एक goal सोचो and see what outcome do you want from it and start practicing. In between, if you get distracted, please follow a 10-minute rule, और वही तुम खुद करो. क्या करो मैं तुम लोगों को बताता हूँ. So whenever I used to study, देखो तुम अगर ये सोच रहे हो कि यार मैं 5-6 घंटे से अच्छे पढ़ता हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं था. Whenever I talk about that I used to study at stretch, that the thing that I mean is कि यार मैं हर घंटे के बाद थोड़ा थोड़ा ब्रेक ले लेता था. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 4 से 5 मैंने पढ़ाई करी, तो 5 बजे 5 से 10 मिनट का ब्रेक ले लूंगा, फिर वापस से 5-10 से पढ़ाई करूंगा, 6 बजे तक पढ़ूंगा, फिर 6-5 से 6-10 तक का वेट कर लूंगा,
break ले लूंगा. Why? Because it gives me energy. Whenever you're going to put in your efforts into something, you actually need to distract your mind so that it creates a particular balance. देखो डोपामिन रश होना भी इंपॉर्टेंट है. अगर वो डोपामिन रश नहीं होगा तुम्हारी बॉडी के अंदर, तो तुम्हें एक्साइटमेंट नहीं आएगा. एंड एक्साइटमेंट इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट टू एवरीथिंग. अगर तुम्हारा मन थोड़ा सा एक्साइटेड रहेगा, तुम्हारा मन थोड़ा अपनी चीज, अपनी गोल को अचीव करने में भी लगेगा. सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस फैक्ट. डिस्ट्रैक्शन जरूरी है, सब कुछ जरूरी है. एज आई सेड, देखो स्मोकिंग करना is bad. All right. So let's talk about drinking alcohol. Drinking alcohol to up to some extent is okay. All right. I mean, it's okay. But ज़्यादा करना is bad. Gambling to some extent is okay. All right. But वो बहुत ज़्यादा जब हो जाता है ना, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डाउनफॉल होता है. इसलिए देखो same way distractions. So when you talk about distraction, थोड़ा distraction actually balances your life. But when you make it more, then it actually harm you guys. So again, please think in the same manner. Now, coming on to the fourth point, when it comes to environment, you should always change your environment. Why I'm going to say, तो अभी इस बात का ध्यान से सुनना. If you have a dull environment around you, you're never going to do it. हम लोग पता है क्या करते हैं, हम लोग हमारे पास फ्रेंड सर्कल होता है. फ्रेंड सर्कल होता है. अब फ्रेंड सर्कल देखो दो तरीके के होता है. इधर यू हैव अ गुड फ्रेंड सर्कल इन टर्म्स ऑफ they are well settled, they talk about good things, they talk about new technologies, they talk about the world, they talk about everything that actually powers you. ठीक है. कुछ फ्रेंड सर्कल ऐसे होते हैं जो एंटरप्रेन्योर्स की तरफ बात कर रहे होते हैं. दे आर ट्राइंग टू मेक समथिंग गुड, दे आर ट्राइंग टू पुश देमसेल्व्स अप, दे आर ट्राइंग टू डू गुड फॉर द सोसाइटी. एक फ्रेंड सर्कल ऐसा होता है दे आर जस्ट मेकिंग फन. रोज शाम को 6-7 बजे मिलते हैं, खा पी के आते हैं, बकवास बातें करते हैं, एंड दे डू इट रेगुलरली, and there is 0% outcome of that kind of meeting. So please, जैसा तुम्हारा आसपास एनवायरमेंट होगा, you're going to evolve in the same way. क्योंकि हम लोग कहाँ से सीख रहे हैं, हम लोग हमारे एनवायरमेंट से सीख रहे हैं. The power from environment is coming on to you, and you are also giving that energy back to the environment in some or the other way, like those guys. Joe, for example, those who do fun every day, they are actually giving their energy to someone who's coming into their group, right? Can you understand? So वही होता है. Try to engage with those people, those who are actually doing something in their life. So for example, let's say someone who's actually looking for a team member and he's want to become an entrepreneur and is actually working on that, you should actually join him. Alright, तो ये चीजों का अगर तुम ध्यान रखोगे, 3-4 पॉइंट है. पेरेंटिंग इशू जो होता है उससे ओवरकम करो. प्लीज डोंट थिंक अबाउट योर पेरेंट आर गोइंग टू गिव यू इकोनॉमिक लेजर. दैट एक्चुअली lower, that actually makes a level less. Why? Because you are economically satisfied, you are totally satisfied that your parents are going to give you. Second, you're going to have problem in terms of technology. अगर तुम्हारे पास आसपास टेक्नोलॉजी है, प्लीज यूज इन इट इन अ जुडिशियस वे. देखो दिन में 1 घंटा फोन चलाना, nobody is going to stop you. All right, nobody is going to stop you. But if you're using your phone like 5 or 6 hours a day, that is very hazardous. तो इन सब चीजों को समझो, impatient and environment. So the way to overcome distraction is, please use a 10-minute rule. 10-minute rule करो. For example, whenever you're concentrating on your work, please take out some time to do what you like. Something that gives you dopamine rush, something that makes you happy, something that triggers something in you. लेकिन उस चीज को सिर्फ इतना करो that you're happy in that particular moment and you're ready to go into the phase. All right. So that's the point I'm trying to make. So whenever it comes to distraction, हमें हमेशा एक limit रखना चाहिए. So for example, let's say this is a R block, this is an active hour in which you are studying. Please try to use this part for the thing that you like. I used to do that. And after that particular point of time, please invest your whole heart and soul in the work that you're doing. तो मैं जितनी भी देर पढ़ता था, I used to do it in the same way. अगर मैं 10 घंटे पढ़ता था, तो मैं 10 घंटे में एटलीस्ट 10 से 12 बार ब्रेक लेता था. And that was necessary. I used to listen songs. I used to do some stuff. I used to scroll Instagram because मेरे को लगता था कि लोग क्या क्या कर रहे हैं. ठीक है. So that's something. तो अब एक दो बार कमेंट देख लेते हैं. Okay.
So I want to get a good job. I want to be a SD. I'm a recent IT graduate. पल्लव कह रहे हैं. तो पल्लव सिंपल सॉर्टेड आंसर दूंगा मैं. देखो, आई थिंक दैट दिस इज नॉट रिलेटेड टू द सेशन, सो आई एम नॉट गोइंग टू एक्चुअली ब्लाबर मोर ऑन दिस वन. बट इफ यू वांट टू गो इनटू आईटी, प्लीज डू डीएसए. डीएसए अच्छे से करो, एंड प्लीज focus more on giving some good contest so that you are prepared for your online assessment test. Online assessment test तुम्हारे अच्छे हो गए, definitely someone is going to get, I mean, you're going to get recruited by some of the other company. But and also focus on operating system and databases, since now we are moving from uh, the compute side to more data side. So now the applications are more data intensive rather than compute intensive. What I mean by that is, now the applications are not much complicated. The point here is, why they are being complicated is the data churning, the data crunch that they have, the huge amount of data coming into the application, so they are more data intensive. So please learn about database. That is for everyone whosoever in our chat and are actually wanting to get a relevant answer on this. Please try to learn DSA. DSA is extremely important for you guys. And after DSA, please learn those important fundamental concepts that are actually necessary in the current system. अब अगर तुम ये देखोगे कि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी जो आज से 30 साल पहले थी वो अब तुम पढ़ोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है, बिकॉज again that is outdated. So please learn those technology that is going to come, that is going to evolve. And as you're going to see in the next 5 or 10 years, data is going to be the fuel. All right, so data is actually the fuel right now. But data ko hum log, if we can get good insights from data, if we can get good visualization from data, if we can get some crucial information from data, that is the need of the industry. How can you mold your data into something useful? So data churning, data crunching, data intensive applications are actually much more required right now. So if you're going to learn about database and you're going to learn about HLD, जो मैं भी अभी पढ़ा रहा हूँ, you can guys can watch my system design series. So system design series के अंदर मैं ये हर चीज का डिस्कस करता हूँ. What all things are required, what all things are important for being, good company right now. So please do that. तो यही था. पल्लव सीना, हेलो प्रोग्रामिंग वीडियो, हेलो एंड थैंक यू. ओके, फोन का बहुत आदत हो गई. अच्छा हाँ, मैं इसका बताता हूँ. सो ऑलराइट, हाउ टू गेट इंटर्नशिप. ऑलराइट, बी ऑफ कैंपस. ओके, तो सबसे पहले तो ये मैं आंसर दूंगा बिकॉज दिस इज रेलिवेंट. फोन की बहुत आदत हो गई है, ठीक है, सबको होती है. द बेस्ट आंसर टू दिस इज, जो मैंने अप्लाई किया था, आई डिलीटेड इंस्टाग्राम, I deleted Snapchat. I don't use WhatsApp. I don't use it. I don't have. I don't use it right now as well. I hate using WhatsApp, and now I try to use Instagram a bit more. But when I used to study, मैंने सारा कुछ delete कर रखा था. And at the point of studying, I used to make my phone on the airplane mode, because this is the most important. This is absolutely, जो तुम्हारा phone है ना, टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया है, तुम्हें काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होगा. तो इंटरनेट जो है, इंटरनेट को पढ़ाई के टाइम पे बंद रखो. जो भी है सबको म्यूट कर दो, और एप्स प्लीज डिलीट कर दो. द रीजन आई एम गोइंग टू टेल, जो मैं तुम लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था, आई एम गोइंग टू गिव यू द आंसर राइट नाउ. द आंसर राइट नाउ इज, if you're going to keep your phone shut for some time, you're going to be the most happiest and your parents are going to be the most happiest. Now why am I saying that? The point I'm trying to make here is, तुम्हारी सक्सेसफुलनेस से, तुम अगर सक्सेसफुल होंगे तो उससे तुम्हें इतना खुशी नहीं होगा जितना तुम्हारे मम्मा पापा को खुशी होगा. प्लस तुम्हारे सक्सेसफुल होने से you're going to get money. Why? Because you're going to get a good job, you're going to be good in life, you're going to get money, you're going to get positive energy from everywhere around you, whether it be your friends, whether it be your relatives, whether it be your school, whether it be your college, whether it be when you'll be walking on the road. At every point of time, if you're successful, you're going to get a positive energy from your environment, because you are actually dissipating some kind of positive energy. तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि अगर हम आज हमारा फोन थोड़ी देर चला लेंगे, थोड़ा कम चला लेंगे, 5-6 महीने के लिए हम फोन बंद कर देंगे, 5-6 महीने के लिए इंस्टाग्राम नहीं चलाएंगे, स्नैपचैट नहीं चलाएंगे, फायदा तुम लोगों को है. ठीक है, सी, मैंने 4-5 महीने नहीं चलाया, 5-6 महीने नहीं चलाया. आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ, I did the hard, I tried hard, I did all that I can do. I studied a lot, and now I have time to do everything.
I can use Instagram, I can use WhatsApp, I can use, and the point is I can be happy while using it. अभी अगर तुम 1 घंटा पढ़ रहे हो और उसके बाद तुम इंस्टाग्राम चला रहे हो, तुमने आधा घंटा वेस्ट कर दिया, सबसे पहला क्वेश्चन तुम खुद से पूछोगे, यार मैंने टाइम वेस्ट कर दिया, अब क्या करें, फालतू में आधा घंटा फोन हाथ लगा लिया। आई थिंक ये सबके साथ होता होगा, तुम लोग भी खुद से क्वेश्चन पूछते होंगे। और सबसे चीज क्या है कि तुम लोग रिग्रेट करते हो इस चीज का कि यार हमने आधा घंटा रिग्रेट किया, आधा घंटा मैंने इंस्टाग्राम चलाया, मुझे रिग्रेट हो गया कि यार मैं क्यों चला, इससे बढ़िया मैं कुछ पढ़ लेता। ये आने क्यों दे रहे हो? ठीक है, वाई लेटिंग दिस थिंग कम इन योर लाइफ? इससे बढ़िया है ना, प्लीज शट इट ऑफ टू फॉर सम मंथ्स। 2-3 महीने अपना आईडी डीएक्टिवेट करो, 2-3 महीने स्नैपचैट डीएक्टिवेट करो एंड हैव फन। पढ़ो, काम करो, जब नहीं पढ़ रहे हो डू सम काइंड ऑफ फन, गो आउट विद योर फ्रेंड्स, ईट समथिंग, अपना क्रेविंग्स कंप्लीट करो। लेकिन 5-6 महीना अगर तुम ये बंद कर दोगे ना, 5-6 महीने बाद व्हेन यू विल गेट योर फर्स्ट जॉब लेटर, व्हेन यू विल गेट योर फर्स्ट internship letter onto yourself, and you're going to see that stipend wala line ki you will be given a lump sum of XYZ rupees. All right, you're going to be the most happiest. And this happened with me, I'll tell you. Just then I got my first internship acceptance letter. That was 3 a.m. in night. 2:56 I got that email that I've been selected for Microsoft's internship. At 3 I was super happiest. I was in my happiest mood, and I called a friend that it happened with me, and I made my mom and parents wake up कि मम्मा पापा मैं सेलेक्ट हो गया हूँ। इतने महीने से मैं पढ़ रहा था, इतने महीने से मार्च से मैं पढ़ रहा था, कोविड था, लॉकडाउन था, मैं पढ़ रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था, बस पढ़ते गया इररिस्पेक्टिव ऑफ थिंकिंग कि मेरे को किस कंपनी में जाना है। मैंने ये भी नहीं सोचा था कि हम माइक्रोसॉफ्ट में जाएंगे। आई वाज जस्ट प्रैक्टिसिंग फॉर द सेक दैट आई हैव टू प्रैक्टिस एंड आई हैव टू बैग अ गुड इंटर्नशिप। ठीक है, लेकिन 3-4 महीने, 5-6 महीने इंस्टाग्राम बंद करना और स्नैपचैट बंद करना और बिना डिस्ट्रैक्शन के बढ़ने से ये हुआ कि 6 महीने बाद, 5 महीने बाद, व्हेन आई गॉट द इंटर्नशिप लेटर, नाउ आई वाज एबल टू स्पेंड माय टाइम एवरीवेयर। अब उसके बाद मैं एक्टिव हो गया ना, क्या फर्क पड़ा? नीदर तुम्हारे कोई दोस्त छूट रहे हैं, ठीक है, नीदर इंस्टाग्राम इज गिविंग यू सम मनी कि इंस्टाग्राम तुम्हें मनी देख रहा है, देखने कुछ भी नहीं हो रहा है यार। बस इंस्टाग्राम क्या कर रहा है, कह रहा है कि they are actually making people happy by lowering the depression levels, but वो तुम लोगों का क्या कर रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है। तो अपने टाइम की कदर करना सीखो। What is important for you guys? तुम्हारा टाइम कितना इंपॉर्टेंट है? अगर तुम ये सोच रहे हो कि 5-6 महीने अगर चला लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो ये काम कर लेते हैं, देखो सब कुछ आ जाएगा वापस तुम्हारी लाइफ में, जो तुम्हारा वक्त गया वो नहीं आएगा। ऑलराइट, तो प्लीज टाइम का जो इंपॉर्टेंस है उसको देखो कि हाउ मच टाइम इज इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। प्लीज थिंक अबाउट इट, दैट इज वे टू इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। ठीक है, तो अब जब तुम इन सब चीजों के बारे में सोचोगे, यू आर गोइंग टू एक्चुअली डील विद एवरीथिंग। तुम डिस्ट्रैक्शन से भी डील करोगे, तुम रिजेक्शन से भी डील करोगे। बस थिंक दैट व्हाट इज योर एंड गोल। और एंड गोल ना कभी ये मत सोचा करो यार अच्छी जॉब ले लेंगे, ठीक है, बस डीप डाइव मत क्या करो कि क्या करना है मेरे को लाइफ में आगे, कि मैं ऐसा ऐसा करूंगा, इसके साथ साथ ये बिजनेस करूंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, ये करूंगा यहाँ से पैसे आ जाएंगे तो खुश हो जाऊंगा। नहीं, प्लीज वेक अप विद पॉजिटिव एनर्जी। तुम लोगों को वो नहीं बनना। देखो मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, कभी ट्राई करना ये चीज अपनी लाइफ में कि व्हाट यू वांट टू डू विद योर लाइफ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, ठीक है। और कभी जाके ऑब्जर्व करना, किसी रेलवे स्टेशन या फिर किसी मेट्रो स्टेशन पे जाके खड़े हो जाना एंड प्लीज ट्राई टू ऑब्जर्व पीपल। लोगों को ऑब्जर्व करने में बहुत मजा आएगा एंड व्हाट दे डू। तो तुम लोग जब देखोगे ना, मेजॉरिटी चंक ऑफ पीपल हु आर एक्चुअली एट अ मेट्रो स्टेशन या फिर बस स्टेशन या फिर कोई भी ऑटो का जो जहाँ पे ऑटोज बहुत सारे होते हैं, अगर तुम वहां पे जाके देखोगे ना, तुम लोग को एक चीज देखने को मिलेगी कि सुबह जितने भी लोग जाते हैं ना, सुबह जितने भी लोग जाते हैं अपने ऑफिस पे, अपने काम पे, दे आर वेदर दे आर इररिस्पेक्टिव ऑफ दे आर गोइंग इन मेट्रो या फिर इररिस्पेक्टिव ऑफ आर दे गोइंग इन अ बस और इन ऑटो, तुम लोग एक चीज कॉमनली देखोगे कि सुबह जब लोग जा रहे हैं ना उस स्टेशन पे, दे आर एक्चुअली स्ट्रेस्ड। भगदड़ में जा रहे हैं सब। भगदड़ में किसके लिए जा रहे हैं? कि ऑफिस जाना है उनको, ठीक है, ऑफिस में जाना है एंड बहुत सारा काम करना है, जेल है, ठीक है, यू आर गोइंग टू एक्चुअली assume it as a jail। लेकिन उन्हीं लोगों को अगर तुम शाम में आते हुए देखोगे ना, they are very happy। अब तुम लोग ये सोच लो कि तुम्हारा पर्पस क्या है लाइफ में, कि क्या तुम्हें भी वैसी जॉब चाहिए, ठीक है, कि तुम सुबह जा रहे हो परेशान होकर शाम को आ रहे हो एकदम, ठीक है, कोई तुम्हारी कदर नहीं कर रहा है, तुम बोल रहे हो कि मेरे को ओवर टाइम करना है,
सामने वाला तुम्हें सेम पैसे देगा और तुमसे ओवर टाइम कराएगा, क्योंकि उसको तो मजा आ रहा है ना तुमसे काम कराने में, ही वॉन्ट्स यू टू डू वर्क। तो तुम्हें अगर ऐसी लाइफ चाहिए तो आई डोंट नो, आई हैव नो comments on this one, but if you want a very smooth life, you want a very good life for you guys, where you are actually empowered, where you're given your full respect, where you're given everything, whether it be beanbags, whether it be good food, whether it be good amount reflecting in your bank account, whether it be anything good in your life, you should try to jot down what are things that make you happy, what is the goal, what do I actually want in my life. जैसे ही जिस दिन तुम्हें आंसर पता लग गया ना, you're going to actually find yourself an answer. अब मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि डिस्ट्रैक्शन ओवरकम करना ये हम लोग के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे कोई Q&A सेशन नहीं हो रहा है, Q&A सेशन नहीं हो रहा है, हम इसका कलेक्टिवली एक सोल्यूशन निकालें, हाउ कैन यू ओवरकम डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन ओवरकम कैसे करें. प्लीज फाइंड आउट सम गुड थिंग्स दैट यू एक्चुअली लाइक. सो फॉर एग्जांपल लेट्स से आई लाइक म्यूजिक, ऑलराइट, आई प्ले गिटार, मेरे को गिटार भी आता है, आई प्ले ड्रम्स, आई एम अ ट्रिनिटी ग्रेड 3 ड्रमर, ठीक है, तो मेरे को ड्रम्स प्ले करना काफी ज्यादा अच्छा लगता है, और आल्सो अ लॉट ऑफ टाइम्स आई सिंग, ऑलराइट, आई लव सिंगिंग. तो मेरे को म्यूजिक में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है. तो जब भी मेरे को मौका मिलता है, वेदर आई गो ऑन अ ड्राइव, या फिर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, या मैं ऑफिस का काम कर रहा हूँ, करंटली आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट माइक्रोसॉफ्ट, तो जब भी मैं काम कर रहा हूँ मैं बहुत पिस्ड ऑफ जाता हूँ कि यार बहुत हो गया, आज बहुत मीटिंग्स लगा लिए, या फिर कभी कोई बग ढूंढ रहा था, बग नहीं मिल रहा था, कोड कर रहा था, कोड नहीं चल रहा था, आई हैव टू वेट फॉर इंटीग्रेशन टेस्ट रनिंग सुपर, ये सब मैं कर रहा था. एंड आई थिंक मेरे को बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग लगता है. मैं क्या करता हूँ, चलाता हूँ स्पॉटिफाई एंड मैं आई प्लग इन माई एयरपॉड्स और मैं गाने सुनता हूँ. दैट मेक्स मी काम. वो मेरे को डोपामिन रश देता है बिकॉज दे मेक मी हैप्पी. इससे क्या होता है, जो मेरा पूरा एक स्ट्रेच पे जो काम चल रहा होता है ना, वहां से मेरा कंसंट्रेशन टूटता है, जिसकी वजह से डोपामिन रश मेरे दिमाग में आता है एंड आई बिकम हैप्पी. फाइंड समथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी एंड कैन बी डन इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. तो जैसे गाने सुनना, फॉर एग्जाम्पल तुम इंस्टाग्राम चलाते हो, जस्ट सी द मैसेजेस कि किस किसने मुझे मैसेज किए, कौन कौन मुझे मैसेज कर रहा है, यू कैन जस्ट सी, गो एंड चेक, देखो किसने मुझे मैसेज किए, देखो हैंड टू हैंड रिप्लाई करो एंड आ जाओ पढ़ लो. प्लीज, ये जो डोपामिन रश होता है ना, ये बहुत बहुत हैजर्डस चीज है अगर तुम इसको लेवल्स में नहीं करते. Again, as the same level, alcohol to some extent is okay, but alcohol uh, with a lot of extent is very dangerous to you guys. Exactly the same way हम ये जो फोन यूज कर रहे हैं when we are working, all right, when we are working, when we are doing something meaningful, तब तक छोटा एक्सटेंट तक करना. फॉर एग्जाम्पल लाइक 5-10 मिनट्स देख लेना आफ्टर एन आवर कि क्या क्या चल रहा है, स्टेटस, व्हाट इज स्टेटस, व्हाट आर पीपल सेइंग, इज देयर सम काइंड ऑफ इमरजेंसी और समथिंग. ठीक है, अगर ऐसा कुछ है दैट्स ओके. बट अगर तुम 1 घंटा काम कर रहे हो और 1 घंटा फोन चला रहे हो, दैट्स बैड, दैट्स पथेटिकली बैड. और इसको तुम कम कैसे कर सकते हो, ट्राई टू फाइंड गुड थिंग्स दैट हेल्प यू. यार इंटरनेट बंद कर दो जब भी तुम काम कर रहे हो, प्लीज ट्राई टू कीप योर इंटरनेट ऑफ. देखो, तुम काम कर रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, पढ़ने के टाइम इंटरनेट की जरूरत नहीं है, पढ़ने के टाइम इंटरनेट की जरूरत नहीं है, पढ़ने के टाइम पढ़ने की जरूरत है. तो इंटरनेट बंद कर दो, प्लीज फाइंड अ गुड पर्पस इन योर लाइफ, यू आर गोइंग टू एब्सोल्युटली अचीव इट. ऑलराइट, कुछ कुछ क्वेश्चंस. इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है यार. सो आई मीन पल्लव, ये तुम्हें प्रैक्टिस करके ही होगा, मतलब ये मुझे भी प्रैक्टिस करके होता है. सो यू हैव टू प्रैक्टिस. ये चल जाएगी अगर तुम बातों का ध्यान दोगे. फोन की बहुत आदत हो गई है, फोन का इंटरनेट बंद करना सीखो. फोन का इंटरनेट अगर बंद करना सीखो तो तुम्हारा काम हो जाएगा. जैसे मुझे भी इंस्टाग्राम और स्नैपचैट वगैरह की आदत नहीं है. आई एम नॉट ऑन स्नैपचैट, आई एम नॉट ऑन इंस्टाग्राम भी मैं बहुत ज्यादा कम चलाता हूँ. दैट्स वेरी प्राइवेट अकाउंट, आई डोंट यूज इट. स्नैपचैट पे मैं हूँ ही नहीं. व्हाट्सएप मुझे बहुत कम लगता है, बहुत अच्छा नहीं लगता है चलाना. सो दैट इज माई वे, और मैं यही करता हूँ. तो फोन की आदत जब छूटेगी जब तुम खुद चाहोगे. इफ यू आर गोइंग टू बिकम, इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल ना, तुम्हें अपनी लाइफ में अपनी कुछ आदत छोड़नी पड़ेगी, और ये तुम्हारा स्टेप है यार. और ये स्टेप का पावर कहाँ से आएगा, जस्ट थिंक अबाउट योर मॉम एंड डैड, कि अगर आज मैं सक्सेसफुल बना, इफ आई एम सक्सेसफुल टुडे, मम्मा पापा खुश होंगे. मेरी लाइफ में मैं हमेशा मम्मा पापा का देखता था, तो इसलिए खुश होता था. ठीक है, ओके.
कमिंग टू हाउ टू गेट इंटर्नशिप इन थर्ड ईयर में इंटर्नशिप के लिए प्लीज अप्लाई टू ऑनलाइन इंटर्नशिप जो तुम्हें करियर्स की वेबसाइट में मिल जाएगी. सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से careers.google.com, careers.microsoft.com, उन पे इंटर्नशिप के ऑफर्स होते हैं. प्लीज ट्राई एंड गो एंड सी द रेज्यूमेज कि तुम्हारा रेज्यूमे कितना मैच कर रहा है. ब्रो वेबडी वर्सेस डीएसए व्हाट शुड आई प्रेफर टू क्रैक ऑफ कैंपस. यार ये दोनों का सेम डोमेन नहीं है. वेबडी इज समथिंग डिफरेंट, डीएसए इज समथिंग डिफरेंट. DSA is a must for everyone. WebD is some kind of technology that if you want to learn or not. So you can learn WebD or maybe ML or maybe deep learning or maybe AI. ठीक है. तो ये अलग चीज है, डीएसए अलग चीज है. डीएसए तो तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्विंग हो गया, वेबडी तुम्हारा प्रोजेक्ट साइड हो गया. दोनों इंपॉर्टेंट है, तो वर्सेस मत लिखना यहाँ पे. ये ऑफ कैंपस वालों को रेज्यूमे में ट्रैक कैसे करें इफ देयर इज ओनली डीएसए. अच्छा, तो देखो सिर्फ डीएसए से काम नहीं होगा. यू विल हैव टू हैव गुड टेक्निकल सब्जेक्ट्स दैट यू शुड ऑलवेज नो. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ओएस तुम्हें आना चाहिए, डेटाबेस तुम्हें आना चाहिए. अगर तुम पढ़ सकते हो सिस्टम डिजाइन पढ़ो, अगर तुम पढ़ सकते हो कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ो. ठीक है, तो ये चारों इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा प्रोजेक्ट इज अ नेसेसरी थिंग. बिना प्रोजेक्ट के नो वन इज गोइंग टू टेक यू इन अ कंपनी बिकॉज प्रोजेक्ट इज एक्चुअली हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस टू डू समथिंग, टू डेवलप समथिंग. एंड व्हेनेवर यू गोइंग टू कंपनी, तुम लोग कुछ डेवलप करने वाले हो तो डेवलपमेंट बहुत जरूरी है. नाउ स्टार्टिंग पॉइंट इज द बेसिक थिंग दैट आई ऑलवेज से टू एवरीवन. जो भी मेरा स्टूडेंट होता है, इफ यू वांट टू लर्न फ्रॉम बेसिक्स, प्लीज स्टार्ट विद वेब डेवलपमेंट बिकॉज वेब डेवलपमेंट इज मोस्ट बेसिक इन एवरी वन ऑफ देम. ठीक है, एमएल इज बिट हार्ड. एमएल के अंदर एल्जेब्रा आ जाता है, रिग्रेशन एल्गोरिथम्स आ जाती है एंड थोड़ा मैथ्स आ जाता है. सॉरी माय आई एम हैविंग सो थ्रॉट स्टिल आई एम स्पीकिंग, तो थोड़ा बेयर करना है यार. ठीक है, हाउ टू डील विद रिजेक्शन. हाउ टू डील विद रिजेक्शन, ऑलराइट, वेरी गुड क्वेश्चन. इसको मैं लेता हूँ, हाउ टू डील विद बैड स्कोर्स इन अ कॉन्टेस्ट. ऑलराइट, देखो पहली चीज, नेवर एवर कीप रिग्रेट इन योर माइंड. देखो रिग्रेट जब रखना जब तुमने कुछ गलत किया. इफ यू आर डूइंग गुड इन योर लाइफ, दैट मीन्स इफ यू आर स्टडिंग and still not getting your achievement, still not scoring good in your marks, still not scoring good in your exams, please regret mat karna. Just think it as your bad day, and bad day happens. हम लोग के साथ बैड डे होता है. तो जब भी मैं कॉन्टेस्ट देता था ना, सबसे बुरा मुझे ये लगता था यार कि इतने महीने हो गए पढ़ते हुए, मेरी रैंक अच्छी नहीं आ रही है. पता है मेरे को सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन कब होता था कि मेरी माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्नशिप लग गई थी और मैं प्रैक्टिस भी कर रहा था. ठीक है, लेकिन मैं कोड फोर्सेस पे प्यूपिल्स नहीं, आई थिंक स्पेशलिस्ट ऊपर नहीं जा पा रहा था. ठीक है, प्यूपिल टू स्पेशलिस्ट में मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था शिफ्ट करने में, कभी नहीं जा पा रहा था, बहुत टाइम हो गया था. आई यूज टू रैंट टू माई फ्रेंड कि यार ये क्या हो रहा है, मैं जा नहीं पा रहा हूँ. हर बार कुछ ना कुछ गलती हो जाता है, रॉन्ग सोल्यूशन सबमिट हो जाता है जिसकी वजह से मेरी रैंक नहीं बढ़ती. व्हाई इज इट हैपनिंग. मुझे उस टाइम खुद से आंसर पता चला, मुझे किसी ने आंसर ही बताया नहीं. इट टेक्स टाइम फॉर गुड टू बी हैपन, फॉर गुड टू हैपन. ऑलराइट, इट टेक्स टाइम फॉर गुड टू हैपन. सबका अच्छा होता है अपनी लाइफ में, टाइम इज डिफरेंट. हो सकता है मेरा आज अच्छा हो जाए और तुम्हारा कल अच्छा हो, बट अच्छा होगा. थिंक एवरीथिंग विद अ पॉजिटिव मैनर. बस ये सोचो कि रिजेक्शन इज एक्चुअली मेकिंग यू लर्न समथिंग, दैट इज हाउ कैन यू स्ट्रगल इन दैट फेज. ये जो स्ट्रगल है ना, रिजेक्शन से तुम्हें ये पता चलेगा दैट इज स्ट्रगलिंग. और स्ट्रगल वाली फेज है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, दैट इज मेकिंग यू मोर रिजिड टू सच काइंड ऑफ फेलियर्स जो आगे आने वाले. देखो आज अगर तुम्हारा कॉन्टेस्ट बेकार गया, आज अगर तुम रिजेक्ट हुए हो और आज जो तुमने पेन महसूस किया है, अगर आज से 2 दिन बाद भी अगर तुम्हें रिजेक्शन होगा तो तुम उस पेन के थ्रू गुजरोगे, बट इन अ मोर स्ट्रॉन्गर वे. यू विल बी मोर स्ट्रॉन्गर, you will be more rigid and you will be more handy to deal the situation. Alright, तो इस तरीके से सोचोगे ना, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी. ठीक है, बिकॉज यू विल बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू हैंडल इट. एंड हर गलती से एक चीज सीखा करो, प्लीज रेट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ, इंट्रोस्पेक्ट करो खुद को कि तुमने क्या मिस किया जिसकी वजह से तुम्हें ये प्रॉब्लम हो रही है. ब्रो कोडिंग निंजास का वेब डेव कोर्स कैसा है? अच्छा है. हाउ इज डीएसए विद जेएस? बहुत अच्छी है. If you're a fresher, do good projects and add them. Yes, I'm not a fresher, but I want to know what types of project help me to get selected. So if you're not a fresher, please kind of something related to good stack. तो अभी अगर तुम Spark या फिर Scala पे कुछ अच्छा बना सकते हो, या फिर something related to ML or AI, because AI is actually increasing, so that would be good. Ananya Sharma. If I like math, specifically statistics, algebra, will I find ML as a good easy career? Yeah, actually,
if you're deeply interested in algebra, statistics, and you like working with algorithms, ML is a good career. But ML की एक सबसे बुरी बात बता दूं, you won't get open-ended job in ML. They actually hire professionals. तो ML के फ्रेशर जॉब बहुत कम है, ठीक है ब्रो. अगर वेब डेव स्टार्ट किया है विदाउट DSS, कैन आई लर्न वेब डेव लाइक JS Node.js? सो अगर डायरेक्ट वेब स्टार्ट किया है विदाउट, या यू कैन. देखो वेब डेवलपमेंट और DSA बिल्कुल डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट बात है. वेब डेव के अंदर जो JS Node.js React है सब बिल्कुल डिफरेंट हो गया, DSA बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है. तो इन दोनों को जोड़ो मत. DSA को ऐसा समझो कि मैं तुम्हें अगर मैथ्स की लैंग्वेज बताऊं तो DSA इज या प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, मतलब बेसिक चीज DSA. व्हेन यू टॉक अबाउट वेब डेव, तो तुम वेब डेव या प्रोजेक्ट्स, तो उसके अंदर तुम लोग प्लस माइनस अगर यूज करते हो ना, यू यूज टूल्स जैसे अलजेब्रा हो गया, उसके अंदर हम प्लस माइनस कर रहे होते हैं. तो देयर इज समथिंग अबव, देयर इज समथिंग दैट इज above it. All right, तो पहले सबसे पहले हम लोग सीखते हैं DSA, उसके ऊपर on top of it we actually learn some kind of project, and then we try to use our skills from DSA and then we actually apply that in our project. But ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीज है, तो इनको इंटरमिंगल मत करो. Is there a problem in interview if I prefer JS over Java or C++? ऐसा कुछ भी नहीं है. देखो इंटरव्यू में कभी लैंग्वेज वेरिएंट नहीं होता. They always try to listen to what your algorithm and how your mind works, so don't worry about it. Use Java plus SQL projects. You can also use ML, but you need to learn Python very well. Yeah, so for ML, Python is a must. For any kind of deep learning, data science or deep learning or AI or ML, Python is a must. So with that, okay, we have solved the problem of data structure, but when I gave away rounds, I do not solve it. Can you suggest me? देखो यही मैं पॉइंट कह रहा था, ठीक है, यही मैं पॉइंट कह रहा था कि कभी भी ये मत सोचा करो कि इफ यू सॉल्व प्रॉब्लम यू आर गोइंग टू सॉल्व प्रॉब्लम इन ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट. ऑनलाइन असेसमेंट इज वेरी डिफरेंट, क्योंकि वो वहां पे हमारे पास प्रेशर अलग होता है. तो इसके लिए बेस्ट सिनेरियो ये होता है कि प्लीज ट्राई गिविंग सम गुड कॉन्टेस्ट. गेटिंग अ पॉइंट? तो टाइम से ये, तो अगर तुम टाइम के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व करना सीख गए, यू आर गोइंग टू एक्चुअली डू गुड. और ये टाइम में कैसे सीखोगे? व्हेन यू एक्चुअली डू कॉन्टेस्ट. सर आई एम अनेबल टू कंसंट्रेट, आई हैव कंप्लीटेड माइलस्टोन 1, स्टक ऑन माइलस्टोन 2. अगेन देखो ये सारी चीजें प्रोग्रेसिव है. ट्राई टू एक्चुअली सेट योर बार इन अ वेरी स्मॉल मैनर. देखो स्टेप वाइज काम क्या करो. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हमारे पास इतना बड़ा चंक है खाने को, तो हम लोग उसको कभी एक साथ तो खाते नहीं है, ठीक है. लेट्स से मेरे पास एक ब्रेड है, सबवे का सैंडविच है, ठीक है, और वो इतना बड़ा है, तो हम अभी उसको एक साथ दिखाएंगे, करेक्ट. हम कभी एक साथ दिखाएंगे, हम क्या करते हैं उसके पीसेस कर लेते हैं. वी एक्चुअली डिवाइड इट इनटू सम स्मॉल पीसेस एंड देन वी ईट इट. तो हम लोग एक्चुअली अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं? वी आर एक्चुअली डिवाइडिंग एंड कॉन्कर. तो इफ यू हैव अ बिग टास्क टू डू, प्लीज डिवाइड दैट टास्क इनटू स्मॉलर थिंग. तो फॉर एग्जांपल लेट्स से कि यू आर एट अ लेवल 1400 ऑन कोड फोर्स एंड यू वांट टू जंप टू एक्सपर्ट, या फिर कहीं पे ऊपर जाना है, तो पता है क्या करो? सॉल्व करने का बेस्ट तरीका ये है कि उस माइलस्टोन को अचीव करने के लिए जो माइलस्टोन है ना, और माइलस्टोन 2 के बीच में जो भी स्टेप है, फॉर एग्जांपल लेट्स से 1400 से 1600 जंप करने के लिए मुझे 1500 पे आना पड़ेगा. मैं 1500 के क्वेश्चन करूंगा 100 नहीं 10-20 10 क्वेश्चन लगा लूंगा, 10 से 20 क्वेश्चन लगा लूंगा, और 1500 लेवल मेरा ऑटोमेटिकली लेवल इंक्रीज हो जाएगा. बट ये स्लो प्रोसेस है. ये जो ग्राफ है ना, इंप्रूवमेंट का ग्राफ, ये धीरे धीरे जाते जाते ना ऐसे कर्व इधर फ्लैट होते जाता है. दैट मीन्स वहां पे हमारी लर्निंग थोड़ी क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, ठीक है. बिकॉज हमारे माइंड में काफी सारी चीजें आती है, वी हैव मल्टीपल एल्गोरिथम, मल्टीपल वेज टू सॉल्व. तो ये बहुत धीरे हो जाएगा. बट इसमें क्या है, इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए, इस बैरियर को और स्टीप बनाने के लिए तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी. या मीन्स यू शुड प्रैक्टिस मोर, ठीक है. बट डिमोटिवेट नहीं होना. डिमोटिवेट होना अच्छी चीज है, लेकिन रिग्रेट नहीं करना है कि यार मैंने पढ़ा तब भी नहीं हुआ. मैं रिग्रेट नहीं करता. अगर मेरा कॉन्टेस्ट बुरा आता है तो मैं थोड़ा प्रैक्टिस और ज्यादा कर लेता. लेट्स से 1 घंटा और प्रैक्टिस कर लेते हैं यार, क्या हो जाएगा? देखो अल्टीमेटली कॉन्टेस्ट में क्वेश्चन नहीं हो, उससे फायदा नहीं है. अल्टीमेटली जब तुम्हारी कंपनी है उसमें क्वेश्चन होना चाहिए, उसमें फायदा. तो कभी कॉन्टेस्ट को लेके है ना, ये दिमाग में डालो करो यार कॉन्टेस्ट नहीं हो रहा, क्या करेंगे, हमारे से कंपनी सॉल्व नहीं होगी. नहीं, ये सारी चीजें बात की बात है जब हम कंपनी में बैठेंगे.
अभी ट्राई टू गिव योर बेस्ट, ट्राई टू गिव 100% इन वॉट एवर यू डू, और बात की चीजें बाद में सुनने जब रिजल्ट आएगा, ठीक है। ये ये मिथ है, ठीक है। इंटरव्यूज बहुत अच्छे होते हैं, और डरा मत करो। इफ यू डोंट लाइक एनीथिंग प्लीज आस्क देम, उनसे पूछा करो कि सर मैं इधर अटक गया हूँ, हाउ कैन यू हेल्प, एंड कैन वी टेक इट, मतलब कुछ इज देयर एनी अदर अप्रोच दैट आई कैन टेक इट। अब मैं एक और चीज बताऊंगा, अगर तुम्हें इंटरव्यू से रिलेटेड बातें जाननी है तो तुम मेरा पिछला लाइव देख सकते हो, मैंने उधर सब कुछ बताया था, हाउ डू आई एक्चुअली अप्रोच इंटरव्यू, मैं इंटरव्यू कैसे अप्रोच करता हूँ, हाउ डू आई फॉर्मुलेट सोल्यूशन इन एन इंटरव्यू। अभी ना थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, थैंक यू की जरूरत नहीं है, प्लीज जस्ट स्टे फोकस, दैट्स ऑल। शिवम पाटिल, इसका आंसर ये है कि अगर तुम्हारे मल्टीपल कोर्स है ना, तो तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें मल्टीपल कोर्सेज कभी नहीं खरीदने चाहिए, हमेशा पहला एक कोर्स करो, जब वो हो जाए तब दूसरा करो। बैड मैनर्स टू डू मल्टीपल कोर्स एट सम टाइम। अगर चार नावों में पैर अगर दो नावों में पैर रखोगे तो गिरोगे ही ना, गेटिंग अ पॉइंट। तो सिंपल एक कोर्स करो, कंप्लीट करो, फिर दूसरा कोर्स लो। विद दैट गाइस, आई वांट यू गाइस टू बी वेरी हैप्पी। एंड अगर तुम और यहाँ पे कुछ अनन्य कह रहे हैं, DSA is weak. Please practice, Ananya. And to any of the question, if I've unanswered, please come to my LinkedIn. I will try to answer each and every one of them. मेरे को कोई issue नहीं है in answering on LinkedIn, so don't worry. So you guys can come to my LinkedIn. And please, distractions is in your hands, and everything is in your hands actually. तो अगर तुम चाहते हो तुम्हारा अच्छा हो, it's your hand. Think about your goals. Think about what is important to you. इज हैप्पीनेस इंपॉर्टेंट टू, या फिर तुम्हें और टाइम वेस्ट करके अपना ही हैप्पीनेस को डिले करना है। अच्छा सबका होगा, अगर तुम आज मेहनत करोगे तुम्हारा कल अच्छा होगा, अगर तुम 2 दिन बाद मेहनत करोगे तुम्हारा 3 दिन बाद अच्छा होगा। अब तुम्हें, अब ये तुम्हारे पे डिपेंड है। आज अगर तुम कोई चीज छोड़ सकते हो, उसका तुम्हें जल्दी इफेक्ट, उसका इफेक्ट तुम्हें जल्दी मिलेगा। अगर तुम मजे करते रहोगे, 6 महीने तक पढ़ाई नहीं करोगे, तो 6 महीने बाद की बात होगी। तो वाई टू वेस्ट टाइम। जितना जल्दी तुम अपने ऊपर मेहनत करोगे, उतना जल्दी तुम खुश होगे। तो डू इट इन सच वे। So with that, I want you guys to be happy. I want you guys to be motivated. And I know each and every one of you, 21 people in my life, you're going to do super good in your entire career, in your entire life. Please do it this way, and please be happy. Till then, bye guys, and happy New Year to everyone. Uh, Thank you. That's very good. Actually these kind of things make me a lot happy, but again देखो मेरा इसमें कोई खुशी नहीं है, मैं वो फेज पार कर चुका, आई एम बीइंग वेरी फ्रैंकफुल, मेरा वो फेज जा चुका है। हम भी डिस्ट्रैक्ट होते थे, बट नाउ आई वांट यू गाइस टू लर्न समथिंग कि ये जो बकवास बातें होती है ना, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता लाइफ में, ठीक है। सच कह रहा हूँ कि ये जो डिस्ट्रैक्शन होता है ना, ये बहुत बकवास चीज होती है लाइफ की। बट द डे जब तुम अपना गोल सोचोगे कि यार मेरे को है ना मम्मा को खुश करना और अपने पैसे पे कुछ लेके आना है, मेरे को पापा को खुश करना है और पापा के लिए कुछ लेके आना है, दैट डे you'll बी वेरी सीरियस इन योर लाइफ एंड you'll डू थिंग्स। क्योंकि मम्मा पापा को खुश देखने सब पर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो डू इट इन सच मैनर, फाइंड द गुड गोल फॉर योर लाइफ, फाइंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, व्हाट मेक्स यू हैप्पी, व्हाट इज द किक फॉर यू। जब तुम वो करोगे ना, तुम्हारे को डिस्ट्रैक्शंस, तो वर्ड साइड में हट जाएगा, वो साइड में पड़ा रहेगा, ठीक है। फोन तुम्हें यूज करने का मन नहीं करेगा, बिकॉज देयर विल बी अ गोल इन योर माइंड। अभी पता है क्या होता है, तुम लोग दलदल में हो कि किस तरफ जाएं। यार वो वेब डेवलपमेंट सक्सेसफुल हो गया, वो ML में सक्सेसफुल हो गया, या यार इससे बढ़िया तो इंजीनियरिंग लेते ही नहीं, तो ठीक है, या इंजीनियरिंग लेते, प्रोग्रामिंग क्यों चालू करी, फालतू में फंस गए, ठीक है। तो अगर तुम ऐसे चीजें सोचते रहोगे तो यू आर नेवर गोइंग टू बी, यू आर नेवर गोइंग टू हैव अ सेटल्ड माइंड। तो अपने माइंड को पहले पीस पे लेके क्या हो, फाइंड अ गोल फॉर योरसेल्फ, something that makes you happy, and you're going to actually deal with it. Now with that note, please be happy. Sorry, stay working and enjoy. Bye guys.